Hello everyone. This video is about the phase 2 preparation of CB Legal Grade A exam. In the last video, we have explained and the approach that you need to take for preparation of phase 1, and I believe I have explained everything in an exhaustive manner. And now in this video, we will be explaining how should you approach the phase 2 along with the phase 1. So this is a 3-month strategy, and so the target exam duration will be January to February 2026. This will be 2026, and the duration that we have in our hand is 90 days, or I would say now we have almost 75 days. So why phase 2 preparation can't wait? So why you need to prepare the phase 2 right now, and you cannot do post your phase 1 exam. So the phase 2, as you know, decides the final merit. The selection depends upon the number of the phase 2 exams, and the phase 1 basically is of a qualifying nature, and your phase 2 performance decides your rank and merit and chances that you get selected in the exam. So the selection is based upon the phase 2 exam, that is of 85%, and 50% is of interview marks. So a lot depends upon the phase 2 marks. The more you'll score in the phase 2, the lesser you'll have the burden of scoring, or you never know how the interview can go. So for that safety, you have to score as much as you can in the phase 2 exam. So only 30 days that you have between the phases. So in phase 1 and phase 2, the gap between the two exam is almost 1 month. So start preparing after phase 1 means that you have already behind. So if someone is preparing post phase 1 exam, so trust me, you are way behind the competition. You are basically out of the game. So what you need to do is prepare now onwards, so that you complete the syllabus at least twice or thrice, or like 5 times, as much as you can. That is much more important. So parallel preparation is very much required. So a smart aspirant does what they prepare for both the exams simultaneously. So you have to prepare both the phases together. So complete the phase 2 syllabus before the phase 1 to use the gap for the strategy and रिविजन ओनली. सो अब करना क्या बेसिकली, हमें फेज़ 2 को सिलेबस को एटलीस्ट एक बार कंप्लीट करना है बिफोर द फेज़ 1, सो दैट यू कुड यूज़ दैट गैप ऑफ फेज़ 1 एंड 2 के बीच का जो गैप है, यू कैन यूज़ इट फॉर द रिविजन एंड स्ट्रैटेजी. सो बेसिकली द competition intensify for the phase 2. Phase 1 is of qualifying nature. All the serious, not serious aspirant apply, and most of them get eliminated. तो for the phase 2, who जितने भी लोग रहते हैं, they are the most serious aspirant, and there is the main competition that starts. So whoever delays the preparation compromises their chance of securing for the interview or getting selected. So what should be the strategy? The strategy should be of a dual phase. Dual phase means that you have to prepare for both the exams together. So this is the 3 months blueprint. So ये 3 month का blueprint है. क्या है इसमें? First you have to complete the phase 2 before phase 1. phase 1 का से पहले आपको phase 2 को एक बार complete करना पड़ेगा. So एक बार phase 2 का syllabus है वो phase 1 के एग्ज़ाम से पहले हो जाना चाहिए. This will help you creating a solid foundation. And second thing is strategize the window. The gap of 1 month between the phase 1 and phase 2. So in that window you have to revise, rather कि नहीं आप first time start कर रहे हो and you are not very well, we are not well versed with the provision, the section and everything. It is just new that is coming. That window should be preserved for strategy and revision. It is not for first learning. You cannot be like कि हाँ कुछ चीज़ छोड़ देते हैं उस समय कर लेंगे. No, that will bite you. You have to complete it at any cost. What double coverage target? But what would I suggest?
what would I suggest is that you complete the phase 2 syllabus twice before the फाइनल एग्ज़ाम मतलब फेज़ 1 के एग्ज़ाम से पहले 2 बार कंप्लीट सिलेबस करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दिस विल हेल्प यू, दिस विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, यू विल नो कि कहाँ वीकनेसेस है क्या हैं, एंड और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, यू विल नॉट पैनिक अ लॉट, यू विल डू थिंग्स इन अ वेरी स्ट्रक्चर्ड मैनर. सो कंप्लीट सिलेबस ट्वाइस एंड इट इज़ वेरी मच पॉसिबल, ट्रस्ट मी. आप 3 बार ही कर सकते हो उससे पहले. इट इज़ जस्ट दैट हाउ मच एफर्ट you are willing to give. So how this will help? So by repetition, by revision, what will happen? Your recall speed, your revision speed and everything will increase. So will be much more efficient and you will give, the output will be much more. So discipline toward phase preparation supplies the top ranker from average performance. Obviously आपको एवरी एग्ज़ाम, आप किसी भी एग्ज़ाम की बात कर लो, रिवीजन के बिना कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता. एंड दिस एग्ज़ाम्स रिक्वायर्स लॉट ऑफ रिवीजन बिकॉज यू नेवर नो कहाँ से पिक हो सकते हैं आप क्वेश्चंस. सो यू हैव टू रीड द बेयर एक्ट cover to cover and you have to read it multiple times. Right, now let's talk about phase 2 exam structure. I know most of you must be well versed with the exam pattern, the syllabus and everything, but let's talk about so that even I can explain in a very structured manner. So the English paper, so English paper consists of 100 marks. The this will be paper 1. So ये 1 घंटे का पेपर होता है, 1 आवर का पेपर होता है, ये 1 आवर पेपर. एंड ऐसे जो होते हैं वो 30 मार्क के आते हैं, प्रेसी 30 मार्क के आते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 40 मार्क के आते हैं. ऐसे जनरली इन टॉपिक विल बी गिवन टू यू एंड यू हैव टू राइट. कितने वर्ड्स का होता है, दैट इज़ जनरली आपका 250 वर्ड भी कभी कभी पूछा गया है एंड इट कुड गो अराउंड 300 से 350. सो इफ़ यू आर प्रैक्टिसिंग ऐसे तो एटलीस्ट ट्राई कि आप 300-350 वर्ड का प्रैक्टिस करो एंड ताकि इवन कम आए तो दैट विल हेल्प यू. एंड अगर 300-350 आता है तो आप प्रिपेयर हो उस चीज़ के लिए कि आप विद इन द टाइम फ्रेम आप कर सको उसको. ऐसे के टॉपिक्स क्या होते हैं, ऐसे के टॉपिक जनरली आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स होते हैं और स्टैटिक्स टॉपिक होते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ दैट यू हैव टू प्रैक्टिस 5 स्टैटिक टॉपिक. स्टैटिक एज इन वुमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो एसेस होते हैं तो उनमें आपको करना है. एंड स्टैटिक भी जब आप व्हेनेवर यू राइट स्टैटिक तो आपको करंट सिनेरियोस का भी रेफरेंस देना पड़ता है. And there will be something from the current affair also, as in like last year in the English के ऐसे में क्वेश्चंस आए थे इससे फिन इन्फ्लुएंसर से आए थे. and at that time SEBI took action against the fin influencer. and also there was one essay related to G20 इंडिया में हुआ था. it was a big event. so that वो भी एक ऐसे का क्वेश्चन बन के आया हुआ था. These were the 2 questions. लास्ट ईयर जो ऐसे का क्वेश्चन आया था what was with AI से था. एंड इवन स्टिल AI इज़ वेरी मच रिलेवेंट. AI से रिलेवेंट AI के क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट होते हैं. प्रेसे इज़ लाइक कि एक बड़ा सा आपको ऐसे दे देंगे, एक पैराग्राफ दे देंगे पैसेज टाइप का. दिस विल बी ऑफ 300 to 400 वर्ड्स जिसको आपको 120 या 150 या 80 वर्ड्स में आपको लिखना होता है. दैट्स द क्रक्स ऑफ द story, the crux of the passage you have to write in words. So उसमें क्या होता है कि तुम आपको heading देनी पड़ती है, then you have to write in a structured and flow manner, in a fluid manner. Reading comprehension easy होता है, easy as in कि you get the passage and then you have to write question. You will be given question and you will write the answer. So reading comprehension is easy. The issue that comes with it is that कि आपको 1 घंटे में करने में थोड़ा दिक्कत होता है because you have to type it, you have to write it and गलतियाँ भी होती हैं. and the issue भी आते हैं, इंटरफेस की इशू आती है. we are not very much well versed with the interface. you never know कैसा किस तरीके से हो सकता है. like last year the interface was like this कि पैसेज ऊपर है and the answer that you have to write is below. so at the same time you cannot see the essay and write the answer. so वो ऊपर नीचे, तो आपको कोई भी चीज़ पिक करना हुआ तो यू हैव टू स्क्रॉल अप, गो टू द पैसेज, वहाँ से पिक करके फिर यू हैव टू कम एंड नीचे फिर लिखना पड़ेगा फिर आपको आके कर्सर उस पर क्लिक करके. सो इट वॉज प्रिटी हेक्टिक.
So for this, what you need to do is to practice a lot, so that you efficiently do it within the time frame, और कम से कम एरर करो, प्रैक्टिस करो तो एरर कम होगा, एंड दिस इज़ हाउ यू गोना डू इट. सो इसके बारे में मैं बात करूँगा जब हम लीगल का डिस्क्रिप्टिव डिस्कस करेंगे. उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हम इंग्लिश को किस तरीके से करना है वो भी हम उसी टाइम विल डिस्कस अबाउट इट. नाउ लेट्स गो टू लीगल पार्ट. सो लीगल पार्ट में यू हैव 70 मार्क्स का 70 MCQs of 70 marks, and 30 marks of descriptive. 30 mark of descriptive. So 70 marks के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, कॉन्सेप्ट और केस बेस्ड तो नहीं होते हैं, केस कभी नहीं पूछा जाता है ना पूछा जाएगा. सो डू नॉट वरी अबाउट, एवरीथिंग विल बी आस्क्ड फ्रॉम द बेयर एक्ट. सो what is the resource that you need, resources that you need to see. You don't need any guidebook, कोई नोट्स वोट्स नहीं, कोई कुछ नहीं समरी शीट कुछ नहीं चाहिए आपको. what is required is your बेयर एक्ट. whatever you read, whatever you want to do, just do on that बेयर एक्ट. तो ताकि क्या होगा कि आपको आपकी एक होती है ना कि आप अगर इस सेम जगह से पढ़ रहे हो मल्टीपल टाइम, देन यू हैव दिस पिक्टोरियल इमेज ऑफ दैट थिंग, कि आपको पता होता हाँ इस पेज पे ऐसा था, तो वो आपके एक्यूरेसी के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं. सो बेयर एक्ट इज़ एवरीथिंग दैट यू नीड टू रेफर टू. 30 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, और ये भी क्या होते हैं 60 मार्क्स, ये भी 1 आवर के होते हैं डिस्क्रिप्टिव 3 क्वेश्चन के लिए, और दिस MCQ के लिए भी 1 आवर मिलते हैं आपको. सो टोटल जो आपके एग्जामिनेशन होता है वो 3 आवर्स के होते हैं. डिस्क्रिप्टिव में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इट इज़ वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, अनलाइक योर जुडिशरी का, जहाँ पर केस लॉस और थोड़ा कॉम्प्लिकेट करके और केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं. एंड तो इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे, टू वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, जैसे समन्स इन्वॉल्व में डिफरेंस क्या है. एंड सो ऐसा ही है, किसी सेक्शन से पूछ देंगे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे आपका, पावर ऑफ CB. So questions are very straightforward even when you are reading the provisions of the act. So even by reading also you'll have the understanding, and through that understanding you can write most of these answers. For the descriptive we will be discussing later on कि how should you approach and what should you do. So the weightage is that 40% is from securities laws and 30% is from criminal law, whereas corporate law consists of also 30%. So जो 70 मार्क के MCQs होते हैं उसमें ये स्ट्रक्चर फॉलो होता है 40-30-30, बट ये इट डजंट अप्लाई टू द डिस्क्रिप्टिव कहीं से पिक हो सकते हैं. लास्ट ईयर देयर 5 क्वेश्चंस दैट आउट ऑफ 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करने थे, बट वो सारे के सारे कॉर्पोरेट और क्रिमिनल लॉ से थे. 3 क्रिमिनल से थे, 2 कॉर्पोरेट से थे. वेयर एज लास्ट ईयर द क्वेश्चंस देवर 3 क्वेश्चंस गिवन, और उसमें से 2 सिक्योरिटी लॉ से थे और 1 क्रिमिनल लॉ से थे. सो उसमें ये बाइफरफिकेशन वर्क नहीं करता है. सो now what you need to do, so for both the papers are completely computer based. सो कंप्यूटर बेस्ड हैं तो आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा विद द कंप्यूटर, एज इन ऑब्वियसली यू लाइक टू रीड थ्रू द पेपर. हमें पेपर से पढ़ना ईजी होता है कि हम इतने साल से पेपर से पढ़ते आए हुए हैं, बट ऑल्सो हैबिट डालो अपने में कि आप कंप्यूटर से डायरेक्टली पढ़ो और वहाँ से थोड़ा सा फोकस होकर पढ़ो. ट्राई करो कि आपको आदत हो, हैबिचुअल हो, आपको ब्रेन यूज टू हो. दिस विल हेल्प यू इन द एग्ज़ाम. छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ती हैं ताकि हमें एग्ज़ाम में हेल्प करें. And also start typing practice. Comfort with typing, so you have to be comfortable. It's not optional कि नहीं करना है, but you have to be very much comfortable ताकि आपकी स्पीड बढ़े, एक्यूरेसी बढ़े और आपकी मसल मेमोरी डेवलप हो. सो दीज थिंग्स हेल्प अ लॉट, ताकि टाइम सेव होगा, आपकी कॉन्फिडेंस रहेगी, तो बाकी चीज़ों में अपना दिमाग लगा सकते हो. अगर आपने एरर वो ठीक करो, फिर टाइम निकल रहा है आपका. सो प्रैक्टिस. Higher securities law carry the highest weightage. Allocate your preparation time and preparation proportionately.
सिक्योरिटीज़ लॉ के लिए तो नहीं बोलूँगा मैं, सिक्योरिटी लॉस ऑल्दो हैं वेटेज कवर करता है, ज़्यादा आते हैं क्वेश्चन उससे, बट दे आर ऑन ईजियर साइड, और उसके जो एक्ट और रेगुलेशन है वो भी ईजी होते हैं, सो उसमें डरने की बात नहीं है। नाउ सो फेज़ 2 का सिलेबस क्या है, आई होप सबको पता होगा फेज़ 2 का सिलेबस क्या है, फिर भी वी विल डिस्कसिंग अबाउट द फेज़ 2 सिलेबस। सो क्रिमिनल लॉज में हमारे ये 3 आते हैं, BNS, BNSS एंड BSA, एंड कॉर्पोरेट में कंपनीज, इंसॉल्वेंसी एंड LLP। So these are and for the securities laws we have this SEBI Act, SECRA Act and Depository, and there are 7 or 8 regulations and rule. Now for the company, I know Companies Act, even BNSS are quite a big act, so उनको complete करना is a big thing, not a big thing I would say, obviously करेंगे, बहुत सारे लोग करेंगे ही, तो उससे भागना नहीं है, वी हैव टू रीड कवर टू कवर। बट हाँ, जैसे कंपनीज एक्ट में देयर इज़ अ चैप्टर आई बिलीव, chapter name I'm not able to recall, but the chapter, this producer company something, there is a one chapter, producer companies. So उस chapter में you don't have to read all those things, but हाँ relevant provisions आप उसके पढ़ लेना, याद रख लेना क्या बोल रहा है, ताकि क्वेश्चन इफ़ इन केस बनते हैं तो यू कुड क्रैक इट। रादर आई कैन टेल यू कि कौन कौन से चैप्टर्स बेसिकली इंपॉर्टेंट होते हैं। तो फॉर द कंपनीज एक्ट मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। द कंपनीज एक्ट डेफिनेशन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। सो डेफिनेशंस किसी भी सेक्शंस के, मतलब किसी भी एक्ट के, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डेफिनेशन से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो, कॉर्पोरेट हो या सिक्योरिटीज़ हो, डेफिनेशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डेफिनेशन अच्छे से करना। चैप्टर 2 से भी क्वेश्चन बनते हैं, उसमें चैप्टर 2 में सेक्शन 8 हुआ उसका, फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, ये सब में बनते हैं, और डेज़ का भी उसमें होता है, 30 डेज़, 60 डे, 90 डेज़। फॉर डेज़ व्हाट यू कैन डू इज़ कि 30 डेज़ कॉमनली सब में, मतलब कंपनीज एक्ट में 30 डेज़ का टाइम लिमिट है, तो 30 डेज़ को आप याद मत करो, आप याद करो, और याद करो 60 डेज़ और 90 डेज़ को। तो आपको पता है कि बाकी तो 30 डेज़ होंगे, बट आपको स्पेसिफिक 60 और 90 दिन वाले आपको पता रहेंगे, तो जो अगर उससे एक आध क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपके सही हो जाए। तो क्वेश्चन आ सकते हैं, आते भी हैं, लास्ट ईयर आया था क्वेश्चन। तो चैप्टर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 प्रॉस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन बनते हैं और बनते हैं, क्योंकि इसके जो सेक्शन 23 से स्टार्ट होता है, 23 बहुत इंपॉर्टेंट, 23, 24, 25, 26 से क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। matter to be stated in prospectus. 27 is important variation. फिर then self prospectus, red herring prospectus. These are important. They are very important sections. So chapter 3 is important. Chapter 4 is very important. Chapter 4 consists of your share capital and ventures. So share capital में 43, 44, 45, 46, 47. These are very important sections. Voting right, variation, shareholders, then you said sweat equity share, redemption, registration of company, bonus share, then डिवेंचर्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस, इनको अच्छे से पढ़ लेना। तो चैप्टर 4 इज़ इंपॉर्टेंट। तो वो इंपॉर्टेंट तो सारे ही होते हैं, यू नेवर नो क्वेश्चन कहाँ से बन जाए, बट वो बोलते हैं ना कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं ये बोलूँगा, जो लोग, मतलब मैं बोलूँगा सारा करो, बट इन पर और इम्फसाइज करके पढ़ो और ढंग से पढ़ना है इनको, कि इनसे आते हैं तो गलत मत करो, पर इनसे ही मोस्टली आते हैं। 5 एज सच नहीं होता है, छोटा है 5। जो इंपॉर्टेंट फिर आगे आता है वो दैट इज़ 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो सेक्शन 92 है एनुअल रिटर्न, फिर 96 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, AGM एनुअल जनरल मीटिंग, फिर उसके बाद एक फ्लो में आता है 97, 98, 99, फिर देन 100 दैट इज़ कॉलिंग ऑफ EGM एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। देन कम्स दिस नोटिस ऑफ मीटिंग, कोरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोरम के डिस्क्रिप्टिव में भी क्वेश्चन आए थे, तो कोरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिर तो 105 पर सेक्शन 105 इज प्रॉक्सी, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। 110 पोस्टल बैलेट, तो ये सब सेक्शंस करो, चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सक्यूज मी। 7 देन कम्स चैप्टर 8, चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इसे डिस्क्रिप्टिव ही बन सकते हैं। चैप्टर 8 इज़ अबाउट डिविडेंड, तो वो 123 से 127 तक, सो ये इंपॉर्टेंट है। फिर 9 भी इम्पॉर्टेंट है, 9 से लेकर 13 ये सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं, डिस्क्रिप्टिव भी बन सकते हैं, जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 149 सबसेक्शन 6, एंड फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टर,
DIN, ये सारी जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको कर लो आप। एंड फिर आई थिंक 13 तक हो गया। 14 में भी दे आर फ्यू सेक्शन दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। SFIU के बारे में है 211, और एक दो और सेक्शन हैं मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है, सीजर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, देख लेना ये आप। फिर चैप्टर 15 है, चैप्टर 15 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ रिलेटेड टू दी कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमालगमेशन। देन 16 इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट, 16 इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर आई वुड से इसके बाद आपका फिर जो इम्पोर्टेंट होता है वो फिर आपका आई बिलीव 27-28 जो NCLT के बारे में बात करते हैं और स्पेशल कोड के बारे में बात करते हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस और चैप्टर्स। सो 27 से लेकर सो 16 के बाद 27 से लेकर 29 इज़ लास्ट मिसलेनियस होगा। तो ये फिर इम्पॉर्टेंट है। तो कंपनी सेक्टर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है। उसके अलावा भी आई वुड से कि आप कवर टू कवर ही करना। इंसॉल्वेंसी नंबर का खेल है, नंबर का है, मतलब टाइम लिमिट सारी चीज़ें हैं, CRP है क्या, कितना क्या होता है, उससे भी क्वेश्चन बनता है, डेफिनेशन से क्वेश्चन बनते हैं। LLP के लास्ट के सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। SEBI, सेक्रा एंड डिपॉजिटरी, इनके जो प्रोविजंस हैं 50% ऑलमोस्ट सेम है, और इट इज़ देयर प्रोविजंस आर ऑन ईजियर साइड। अगर आपने ये ठीक से पढ़ा है, ये और ये पढ़ा हुआ है, तो इनकी आपकी लैंग्वेज बहुत ही आपको हल्के लगेंगे, तो आप आराम से पढ़ लोगे इसको। सो डू नॉट गेट इंटिमिडेटेड कि कितने बड़े बड़े हैं, कितने बड़े बड़े प्रोविजन हैं, 10-11 हैं। सो नहीं है, परेशान मत हो। कोई भी चीज़ वन एट ए टाइम देखा करो, कितना क्या कर सकते हैं, एक एक चीज़ कंप्लीट करोगे आपका कम होता जाएगा बर्डन। बस करना स्टार्ट करो, ऐसे एक साथ कोई चीज़ मत देखा करो, करना स्टार्ट करो, हो जाएगा, सब हो जाएगा धीरे धीरे। छोटे से स्टार्ट करो, कर लो पर, बिकॉज इफ़ यूल कंप्लीट वन थिंग यू विल हैव दैट सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन। जब सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आता है यू टेंड टू डू मोर, तो आप और करते हो। सो इट इज़ जस्ट साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल थिंग्स। तो आप करो इसको। एंड नाउ द प्रिपरेशन शुड इंटायरली बी बेस्ड ऑन द बेयर एक्ट ओनली। बेयर एक्ट ही करना है, बेयर एक्ट के अलावा कुछ नहीं करना है। कोई भी बुक एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आपको कि आप अमेजोन से मंगा लो, कहीं से मंगा लो, या कोई कोचिंग का नोट्स, दैट डजंट हेल्प। इट इज़ स्टूपिड टू गेट इट, जस्ट बेयर एक्ट, नथिंग मोर। एंड डू नॉट वॉच दिस मैराथन वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, या यूट्यूब में लंबे लंबे वीडियोज़, इट इज़ नॉट गोना हेल्प। हाँ, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कुछ तुम्हें समझना है समझ लो, दैट आई वुड से, बट उसके अलावा कुछ नहीं है। यूट्यूब पर रिसोर्सेज हैं, बट वही है कि रिसोर्सेज में आप खो मत जाना, कुछ भी पढ़ने लगना। You have to stick to the syllabus, what is required that need to be done. कोचिंग भी ऐसे, कोचिंग में तुम्हारे क्लासेस ले के तुम्हें पढ़ाने लगे कि हम सब चैप्टर तुम्हें पढ़ाने लगे, बट पढ़ाने लगे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, आई थिंक दैट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। वाई नॉट रिक्वायर्ड? बिकॉज कॉन्सेप्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं वहाँ पर, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज़ वेरी सॉर्टेड होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, ज़्यादा नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। एंड MCQ जो क्वेश्चन बनते हैं दैट इज़ डायरेक्टली फ्रॉम द बेयर एक्ट। So you are not required any coaching or anything. It is all the form of business that is going on. So अपने खुद से प्रिपरेशन करो, and we are here to mentor you. So it's not an issue. There are a lot of resources available. So use the resources and do well. Okay. So now let's talk about the paper 2, pattern analysis and descriptive strategy. So for the legal, पेपर 2 फॉर द लीगल। सो लीगल में 70 मार्क्स के होते हैं, 70 क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क ईच, 1/4 उसके नेगेटिव मार्क होते हैं, ये सब तो सबको ही पता होगा। देन सेक्शंस कैसे होते हैं? सेक्शन बेस्ड आते हैं, कीवर्ड बेस्ड आते हैं, या डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोविजन से ही डायरेक्ट पिक कर लेते हैं। लाइक इसलिए मैं रिवीजन के लिए बार बार बोल रहा हूँ, क्या होता है, प्रोविजन से ही पिक कर लेंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे, सेम एग्जैक्टली सेम, थोड़ी थोड़ी ट्विकिंग कर देंगे, कुछ ना कुछ बदल देंगे, और एंड ठीक है, कोई सर्टेन नंबर बंद कर देंगे। एंड तुम्हें लगेगा कि यार अगर कोई ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो उसको ये भी सही लगेगा, वो भी सही लगेगा, कंफ्यूज होगा और वहीं गलती कर देगा। बट किसी ने रिवाइज मल्टीपल टाइम किया, देन व्हाट विल हैपन, उसको स्ट्रेट अवे उसको आंसर दिखेगा कि यही तो आंसर है, इतना ईजी पूछा है। फॉर देम इट विल बी ईजी, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होता है ठीक से और मल्टीपल टाइम रिविजन किया होता है, वो होता नहीं है। बट किसी ने 1-2 बार रिविजन करके चले गए तो वो कन्फ्यूज़ होंगे। अब 50-50 का गेम होगा, 50-50 का गेम होगा तो ऑब्वियसली तो 50% तो हार ही गया तुम ना। So MCQ is this:
तुम्हारा MCQ स्ट्रेट फॉरवर्ड बेयरट की लैंग्वेज से पिक करेंगे, सेक्शन पिक करेंगे और कीवर्ड्स को उठाएंगे। फॉर डिस्क्रिप्टिव 30 मार्क्स के 3 क्वेश्चन 1 घंटे के। लास्ट ईयर क्या था, तीन कंपलसरी क्वेश्चन ही आए थे, 3 क्वेश्चन आए थे और 10 मार्क के होते हैं। रिक्वायर्ड कैसा होता है, स्ट्रक्चर्ड आंसर होना चाहिए तुम्हारा, एक फ्लो में होना चाहिए, सेक्शन का रेफरेंस होना चाहिए, केस लॉज रिक्वायर्ड है तो केस लॉज ऐड करो, एक कॉम्प्रिहेंसिव जैसे हम बनाते हैं लीगली आंसर होते हैं वैसे उस तरह की होनी चाहिए। जैसे लॉ स्कूल में तुमने लिखा होगा कि यू डिफाइन फर्स्ट, डिफाइन करते हो क्या है क्या नहीं है, आफ्टर डिफाइनिंग और उसमें तुम सेक्शन भी ऐड करते हो, चैप्टर भी ऐड करते हो। आफ्टर द ब्रीफ इंट्रोडक्शन डिफाइनिंग इन एवरीथिंग यू राइट द what is being asked in the question. After writing it, if there is a need of adding case laws या case laws कुछ हैं उसमें landmark, then add the case laws. After adding the case laws, एक लास्ट में 1-2 लाइन का you write the crux, right, कि सम अप करते हो। तो उससे क्या होता है कि जो इन्विजिलेटर है जो पढ़ रहा है उसको लगेगा अगर फ्लो में पढ़ रहा है, उसने नहीं भी पढ़ रहा है तो अगर आखिरी में पढ़ेगा तो हाँ he'll अंडरस्टैंड कि हाँ उसने सही लिखा हुआ है, तो एक इंप्रेशन जाता है कि हाँ यू हैव रिटन द आंसर करेक्ट। सो इट इज़ द एक फ्लो होता है, एक फ्लो मेंटेन करके रखो तो दिस विल फेच यू गुड मार्क्स। 2014 में पैटर्न चेंज हुआ था, पहली बार डिस्क्रिप्टिव इंट्रोड्यूस हुआ था एंड जब पहली बार हुआ था तो उसमें 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 5 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन तुम्हें अटेम्प्ट करने थे एंड क्वेश्चंस वर इजी ऑन ईजियर साइड। एंड जब लास्ट ईयर का जो डिस्क्रिप्टिव का पेपर था उसमें ये था कि 3 क्वेश्चन पूछे गए थे एंड 3 ही तुम्हें अटेम्प्ट करने भी होते हैं, सो वहाँ ऑप्शन का सीन नहीं था। सो इट्स नॉट सर्टन, वो सर्टन नहीं होता कुछ, यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट ऑल्सो कि कुछ भी हो सकता है, कहीं से ही पूछ सकते हैं, तीनों सिक्योरिटी से ही पूछ देंगे। बट कीप इन माइंड कि अगर चेंज आएगा, चेंज सबके लिए आएगा, इट्स नॉट फॉर यू। सो यू कैन नॉट क्राई कि मेरे नहीं पढ़ा नहीं किया, तुम्हें पढ़ना ही पढ़ना, हर एक चीज़ पढ़ना, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो, जितनी बार पढ़ सकते हो पढ़ो, करेक्ट। सो जितना बेस्ट दे सकते हो बेस्ट दो एंड प्रिपेयर योर सेल्फ अकॉर्डिंगली। सो क्वेश्चंस क्या आए थे, इनसाइडर ट्रेडिंग क्वेश्चन आया था और उसमें एक केस लॉ का रेफरेंस था, राकेश और राजेश कुमार को केस सिक्योरिटी लॉ का क्वेश्चन था उसका था। तो इनसाइडर ट्रेडिंग को डिफाइन करने के बोला था विथ रेफरेंस टू दिस केस का भी था, 2 पार्ट में था, उसको एक्सप्लेन करना था। तो फॉर अस ऑल्सो, मतलब जो भी बैठे होते हैं एग्जाम में, और फॉर देम ऑल्सो शॉक हो जाता है कि लास्ट ईयर 5 क्वेश्चन थे, सब 3 क्वेश्चन आ गए और सिक्योरिटी लॉ से आ गया। बट प्रिपेयर होना पड़ता है एंड यू हैव टू राइट वट एवर यू हैव रेड, कैसा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, फिर यू राइट। फिर देयर वाज वन क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन कैसे हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, बहुत ईजी। अब तुम इनसाइड ट्रेडिंग में क्या, तुम इनसाइड ट्रेडिंग को एक्सप्लेन करोगे, किस सेक्शन में दिया वो एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, कौन कौन से रिलेवेंट प्रोविजंस होते हैं वो एक्सप्लेन करोगे। फिर इस केस लॉज में क्या डिस्कस किया गया था, उसका क्या रिलेवेंस था तुम एक्सप्लेन करोगे। फिर यू विल गिव अ क्रक्स, मतलब एक लॉजिकल कंक्लूजन दोगे। नाउ एक बार देयर वाज वन क्वेश्चन, कॉन्सेक्यूटिव एंड कॉन्करेंट सेंटेंसिंग, CRPC का क्वेश्चन था। इट वॉज वेरी ईजी, हमको सबको ही पता हुआ है, बट इसमें यह था कि सेक्शन पूछ दिया था कि सेक्शन नहीं बताओ। ऑब्वियसली सबको सेक्शन नहीं पता होता और आई नो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल नहीं लिखे होंगे, 99.9% लोग नहीं लिखे होंगे, बिकॉज किसी को नहीं आता कॉन्करेंट कॉन्सेक्यूटिव जो सेंटेंसिंग का। अगर किसी ने पढ़ा हुआ ऐसा तो हर क्लिक कर गया, बट नहीं होता है, तो टफ आएगा, सबके लिए टफ आएगा, तो डो नॉट वरी अबाउट इट। फिर देखो क्वेश्चन कितनी ईजी आता है, डिफाइन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एज पर SCR है, तो सिक्योरिटी तुम्हें डिफाइन करना होगा, सिक्योरिटी क्या होता है, सिक्योरिटी एज what is defined in the Securities Act that you have to write, एंड कॉन्ट्रैक्ट का जेनरिक नहीं, what is defined in the contract, तो कॉन्ट्रैक्ट कौन सेक्शन में डिफाइंड है, उसमें क्या बोला है वो लिखना पड़ेगा। तो these were the 3 questions that was asked last year, और लास्ट ईयर there were 5 questions, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वेल। तो इसमें देखो ये तुम लिखोगे तो ये तो अपने लॉ स्कूल में हमने लिखा हुआ है कि कॉर्पोरेट वेल के बारे में, तो इसमें केस लॉज भी हैं, तो केस लॉज तुम्हें ऐड करने ही होंगे ताकि तुम्हारा एक आंसर कॉम्प्रिहेंसिव हो। फिर एक था, मतलब क्वेश्चन ऐसे टाइप के थे, कंपैरेटिव या डिस्टिंग्विश बिटवीन टू थे। और फिर देयर वाज एक स्ट्रेट क्वेश्चन था, 5 टाइप ऑफ एविडेंसेस बताओ, तो वो तुम्हें लिखना था। देयर वाज वन क्वेश्चन, वारंट एंड समन केसेस, प्रोसीजर इन वारंट केसेस व्हेन पुलिस रिपोर्ट इज नॉट फाइल्ड, ये 2 पार्ट में था। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो इसमें सेक्शन नंबर लिख दो, आप चीज़ें लिख दो, कोई केस लॉ अगर है इंपॉर्टेंट तो वो कोट कर दो। कोरम ऑफ अ मीटिंग सेक्शन 203 और 5 जो भी था कंपनीज एक्ट में, उसको तुम रेफर करो। प्रॉक्सी वाइज इट इज़ इंपॉर्टेंट, प्रॉक्सी का रिलेवेंस क्या होता है,
इस सेक्शन में मेंशन है, अगर नहीं होता है व्हाट कैन बी डन इफ द quorum इज नॉट अचीव्ड, दैट इज गिवन इटसेल्फ इन द प्रोविजन. So if you read the provision, तो ऑब्वियसली यू डोंट नीड एनीथिंग एज सच कि तुम्हें कुछ अलग से कोई रेफरेंस बुक देखनी है, वहाँ से कुछ आंसर तुम्हें करना नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ स्ट्रेट आंसर, क्वेश्चन ही पूछा है तो स्ट्रेट ही आंसर लिखोगे ना, क्यों घुमा के कुछ लिखोगे तो जो पूछ रहा है. तो व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन, इफ़ यू राइट इट थोड़ा एग्जॉस्टिव तरीके से, एग्जॉस्टिव एज इन क्या, वही सेक्शन, डेफिनेशन, थोड़ा क्वेश्चन के बारे में, कंक्लूजन दे दिया, किस लो ऐड कर दिया, गुड, यू विल गेट द नंबर, यू विल गेट द डिजायर्ड नंबर. सो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, डेफिनेशन प्लस सेक्शन का रेफरेंस तुम्हें देना पड़ेगा, रीजनिंग एंड एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन भी तुम दे सकते हो, इलस्ट्रेशन है विच मेक सेंस, या तुम्हारा आंसर नहीं बन रहा तो इलस्ट्रेशन भी देकर तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, तो ऑब्वियसली इट इज़ द करेक्ट वे, यू कुड डू दैट. कंक्लूजन एंड शुड बी लॉजिकल एंड क्रिस्प, तो वो है. एंड आई बिलीव डिस्क्रिप्टिव मस्ट बी क्लियर नाउ. सो तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, वॉट एवर यू रीड, वॉट एवर प्रोविजन यू रीड, राइट अबाउट दैट. जैसे लेट्स सपोज you read this chapter of BNSS regarding the summon to compel appearance, या summon कैसे होते हैं, या summons warrant और proclamation में डिफरेंस बताओ, तो तुम बताओगे summons इसमें डिफाइंड है, summons क्या होता है, फिर warrant जब summon एग्जीक्यूट नहीं होता है तो warrant करते हैं, वो फिर warrant एग्जीक्यूट नहीं होता है या इवेट करता है, देन द प्रोक्लेमेशन इज़ डन. सेक्शन तुम मेंशन करोगे चैप्टर किसमें दिया हुआ है, चैप्टर 6 में दिया हुआ है, देन यू राइट की प्रोक्लेमेशन होता है, प्रोक्लेमेशन में क्या क्या होता है, यू राइट इट, एंड क्वेश्चन बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही रहेंगे. सो डू नॉट गेट वरीड अबाउट इट, जस्ट डू द बेयर एक्ट एंड अच्छे से करो. थोड़ा कॉन्सेप्ट अपना तुम पढ़ोगे मल्टीपल टाइम, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. यही है. फिर उसके बाद से IPC से डेफामेशन आ गया, डेफामेशन बताओ, ठीक है, एक्सेप्शंस क्या है, तो यू राइट इट सेक्शन के साथ, चैप्टर के साथ डेफामेशन क्या होता है, डेफिनेशन कोई लैंडमार्क जजमेंट है, राइट दैट. तो वॉट एवर समरी ट्रायल यू हैव रेड, कि समरी ट्रायल का चैप्टर CRPC में, मतलब BNSS में, सो यू रेड द चैप्टर कि हाँ जी इस चैप्टर में है, तुमने आज पढ़ा है वो बेयर एक्ट में कि समरी ट्रायल के बारे में, यू राइट दैट थिंग इन द इवनिंग, अपने डेस्कटॉप पर, अपने कंप्यूटर पर लिखो समरी ट्रायल के बारे में. समरी ट्रायल विल डिफाइन अंडर दिस चैप्टर, दिस सेक्शन, दिस टॉक अबाउट दिस, किस टाइप के ऑफेंसेस के लिए होता है, प्ली बार्गेनिंग किस ऑफेंसेस के लिए होता है, दीज आर वेरी द क्वेश्चंस दैट आर मोस्ट लाइकली टू बी आस्क्ड. तो ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पढ़ो, जो पढ़ो उनको समरी में लिखो. इससे क्या होगा, जो आप लिखोगे तो उसमें आपका रिवीजन होगा, राइट, रिवीजन होगा, टाइपिंग की प्रैक्टिस होगी, देन राइटिंग हैबिट बनेगी आपकी, मतलब यू विल स्टार्ट लर्निंग हाउ टू राइट, मतलब तुम्हारी एक आंसर राइटिंग हैबिट बनेगी, तो तुम विद द टाइम तुम और अच्छे हो जाओगे आंसर राइटिंग में. सो या दिस इज द थिंग. एनीथिंग एल्स नो. ओके. सो व्हाट एग्जामिनर वैल्यूज स्ट्रक्चर्ड, इट शुड बी स्ट्रक्चर्ड, हैप्पीजार्ड मैनर में नहीं होना चाहिए कि कुछ भी लिख दिया, कहीं से उठा के लिख दिया, एक स्ट्रक्चर में होना चाहिए. इट शुड बी प्रिसाइज, मतलब व्हाट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन शुड बी रिटन, ठीक है. अब ये कोरम ऑफ मीटिंग सेक्शन 24 दिया हुआ है, अब तुम कहीं से कुछ भी कंटेंट ला के नहीं डालोगे ना फालतू का, जो पूछा है वो बताओ, जो रिलेवेंट है उससे मैच करता है उसको करो. इट शुड बी प्रिसाइज एंड लीगली करेक्ट. शॉर्ट लॉजिकल आंसर होना चाहिए, एंड द वर्ड लिमिट शुड बी अराउंड 250 वर्ड. इट शुड, मतलब 250 वर्ड, क्योंकि अब तुम सारे क्वेश्चन देख लो ऊपर के 250-300 वर्ड के बनेंगे, उससे ज़्यादा नहीं बनने वाले. सो अपना वही प्रैक्टिस रखो कि 250-300 वर्ड में तुम लिख लो, वैसे ही आएंगे. अब कोई क्वेश्चन आ गया जो बहुत ही लेंदी टाइप का हुआ, इफ़ इन केस आता है, तो ऑब्वियसली वर्ड लिमिट ऊपर नीचे हो सकती है. वर्ड लिमिट कहीं भी डिफाइन नहीं होता है लीगल के पेपर में, तो देयर इज़ नो लिमिटेशन एज सच. बट अब व्हाट आई वुड सजेस्ट कि 300 वर्ड के अराउंड तक लिखो, 250-300 वर्ड के अराउंड, क्यों वैसे ही क्वेश्चन आएंगे 10 मार्क्स के. आई होप थिंग्स गेट क्लियर. हाँ, यहीं पे इंग्लिश का हम थोड़ा इंग्लिश वाले पेपर को डिस्कस कर लेते हैं, इंग्लिश के पेपर किस तरीके से करना है. सो फॉर इंग्लिश, ऐसे कि मैंने बताया था कि कहाँ से आते हैं, वो करंट अफेयर से स्टार्टिंग से पिक करते हैं. ऐसे का व्हाट यू कैन डू कि एग्ज़ाम से पहले 10 टॉपिक को अच्छे से कर लो, जो करंट के 5 टॉपिक हैं, जो बड़े बड़े मेजर टॉपिक हैं, एज इन द वर्ल्ड ऑर्डर इज चेंजिंग, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर हैपनिंग अराउंड, द लॉट ऑफ वॉर्स से रिलेटेड कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो आप, तो मतलब उसको पढ़ो ढंग से, फिर
उस पर भी कोई कुछ लिखना है या आर्टिकल मतलब इससे वैसे बन सकता है, उस पर प्रैक्टिस करो। ए आई स्टिल रेलिवेंट, AI पे ऐसे लिखो। कुछ समथिंग बिग इज़ हैपनिंग इन द AI वर्ल्ड, तो उसको पढ़ो एंड वो अपने आर्टिकल में मतलब अपने ऐसे में ऐड करो AI से रिलेटेड। करेक्ट। देन देन इन्वायरमेंट वाली भी चीज़ें भी बहुत हैं, क्योंकि दे आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ हैपनिंग अराउंड। फ्लड आना, बारिश एक्सेसिव होना एंड थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड, तो इस पर भी क्वेश्चन बन सकता है। एंड फिर स्टार्टिंग में तुम्हारे होते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमेन एम्पावरमेंट या वुमेन से रिलेटेड होते हैं क्वेश्चंस। मोरलेस इतने क्वेश्चन होंगे। एंड अगर लीगल से क्वेश्चन नहीं आते हैं, जैसे हमारे दिल्ली विल्ली के जुडिशरी में या कहीं भी लीगल करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं आते हैं एज सच कि लीगल से कुछ लिखने के लिए। दो अभी जैसे मान लो यूसीसी तो ऑल दो अब नहीं है उतना प्रेवलेंट, बट जो न्यूज़ में है वही आएगा। तो अब तक जो न्यूज़ में मैं एज सच आई कैन नॉट रिकॉल एनीथिंग जो बड़ा हुआ है विच कुड बी आस्क्ड एज अ ऐसे। सो मोरलेस यही होगा। तो ऐसे का तो हो जाएगा, ऐसे इज़ नॉट अ बिग डील। प्रैक्टिस करो, जब जब मौका मिले कुछ ना कुछ मिल करो। एंड थोड़ा ट्राई करो कि न्यूज़पेपर पढ़ो। न्यूज़पेपर कौन सा? फाइनेंशियल न्यूज़पेपर, फाइनेंशियल एक्सप्रेस यू कैन डू, मिंट यू कैन डू। सो व्हाट पेज? द फर्स्ट पेज एंड द एडिटोरियल पेज, ये तुम्हें करने हैं। एंड मैक्सिमम 30 से 45 मिनट में जितना कर सकते हो करो, उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उससे होगा क्या कि यू विल मतलब यू विल बी इन हैबिट ऑफ रीडिंग। तुम्हारी रीडिंग अच्छी होगी तो इंग्लिश के पेपर में डिस्क्रिप्टिव सेटिव अरे वो रीडिंग कॉम्पिटिशन तुम करोगे, सो तुम्हारी हैबिट हो जाएगी। तो जब वेन यू विल रीड इट तो तुम लॉजिकल आंसर बना सकोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड, तुम क्रक्स समझ पाओगे। बट अगर तुम्हें पढ़ने की हैबिट नहीं है तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो स्टार्ट रीडिंग द आर्टिकल्स, एडिटोरियल में से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं उनको करो। हाँ, जो एडिटोरियल में से आप कुछ पढ़ते हो, ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ कि हमें देखो जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें से हमें आउटपुट निकालना है, ट्राई करना है। तो अब एडिटोरियल तुमने पढ़ा, वो 300-400 वर्ड का हुआ, राइट। अब उसको क्या करो, आप आके अपने खुद से अब डेस्कटॉप पर अपने लिख लो 120 वर्ड में। तो आपकी चीज़ें प्रेस राइटिंग की आपकी प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। कुछ आपने बहुत अच्छा आर्टिकल देखा विच यू थिंक ही कुड बी आस्क्ड ऐसा ऐसे के टॉपिक में, उसको अपने से खुद से लिख लो आर्टिकल पढ़ने के बाद, या उसके रिलेवेंट पॉइंट अपने दिमाग में रख लो कि हाँ ये अगर AI से ऐसा क्वेश्चन आता है तो आई कुड राइट ऑन दिस, या इफ समथिंग इज हैपनिंग इन द सिक्योरिटी मार्केट ऑफ फाइनेंशियल वर्ल्ड तो दिस कुड बी कोटेड। तो ऐसी चीज़ें रहो, अवेयर रहो। फ्लैश कार्ड बनाओ, ठीक है, फ्लैश कार्ड बनाओ फॉर लीगल ऑल्सो एंड फॉर दिस ऐसे के टॉपिक के लिए भी कुछ कुछ विच यू कुड ऐड। तो हमारा प्रेस राइटिंग के लिए हो गया, एडिटोरियल क्या एडिटोरियल मतलब प्रेस राइटिंग एडिटोरियल का हो गया, ऐसे भी हो गया। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई हैव टोल्ड यू कि व्हेन यू विल रीड न्यूज़पेपर एंड राइट इट, सो उससे क्या होगा कि रीडिंग प्रैक्टिस होगी, तो ऑब्वियसली दिस विल हेल्प यू इन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। राइटिंग से तो आपकी स्पीड बढ़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ेगी। और इंग्लिश के पेपर में और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कुछ चीज़ें को अवॉइड करना है। एरर नहीं होना चाहिए, एरर कम से कम हो। स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक आपकी ना हो। एंड हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कैसे आएगा, इस प्रैक्टिस से आएगी। तो एरर नहीं हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो, स्पेशली स्पेलिंग मिस्टेक ना हो कि किसके भी 0.25 या जो भी हो, जैसा भी हो वैसे मार्क्स सब कटेंगे और कटते हैं। सो वो ना हो, कंटेंट अच्छा हो, और इस पर खास करके ध्यान दो कि एरर कम से कम हो, ग्रामेटिकल एरर कम से कम हो, कॉमा वॉमा सही लगा रहे हो, चीज़ें करा रहे हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में चल रहा है चीज़ें। और जब भी ये क्या पेपर तुम्हारा जो इंग्लिश का है वो होता है 1 आवर का, ठीक है, तो इट मीन्स कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को मतलब कुल मिला के एक तरह से 20 मिनट का, अरे यार एक्सक्यूज मी सॉरी, 20 मिनट का ये, 20 मिनट का ये, 20 मिनट का ये, बट एग्जैक्टली ये 15 मिनट में हो जाता है, क्योंकि सारे मटेरियल आपके सामने ही होता है, आपको रीड करना है फिर लिखना है। तो ये 15 मिनट से भी कम 10 मिनट में भी हो जाता है अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो, मतलब टाइपिंग स्पीड अच्छी है और कॉम्प्रीहेंड अच्छा कर पाते हो, मतलब आपकी रीडिंग स्किल्स बढ़िया हैं। सो वैसे 10 मिनट में हो सकता है। ऐसे ऐसे भी
टाइम लेता है नहीं लेता है, बट डिपेंडिंग अपॉन इफ़ यू रेड इट या इफ़ यू प्रैक्टिस इट मल्टीपल टाइम, या कुछ चीज़ आपके जो आपने पढ़ी है वही मिल जाए, वही आ जाए, तो दिस विल हेल्प यू कि आप वो ऐसे को 10 से 15 मिनट में कर लोगे। फिर आपने 10 से 15 मिनट में कर लिया, ऐसे कर लिया, 10 से 15 मिनट में, मतलब 15 मिनट तो लगेगा ऐसे में, 10 मिनट में कर सकते हो, 10 से 12 मिनट में। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आप ठीक से कर सकते हो क्योंकि स्कोरिंग है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, अगर आपके पास 5-10 मिनट बच जाते हैं, 5 मिनट ही बच पाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या मैं सही बताऊँ 2-3 मिनट बचेंगे, तो उसमें आप जितना चेक कर सकते हो एक बार कि आपने कोई गलती तो नहीं की है, ऑन द फेस जो दिख जाए आपको सही कर लो, थोड़े बहुत नंबर बढ़ जाएंगे। एंड वेन एवर यू राइट जस्ट बी अवेयर कि राइटिंग सही लिख रहे हो आप, थोड़ा टाइप करते करते भी थोड़ा देखते रहो, मतलब दैट शुड नॉट ब्रेक योर फ्लो, मतलब स्पीड का फ्लो ना ब्रेक हो, बट यू शुड बी अवेयर कि हाँ गलत नहीं लिख रहे, क्योंकि हमें टाइपिंग का प्रैक्टिस होता है तो हम टाइप करते हैं रादर ऊपर नहीं देखते हैं, और कभी कभी क्या होता है कीबोर्ड की भी बहुत दिक्कत होती है। एनीवेज, सो आई थिंक इंग्लिश का एक्सप्लेन इनफ कि क्या कैसे क्या करना है, लीगल का भी आई एक्सप्लेन, एंड डिस्क्रिप्टिव लीगल इज़ डन। सो सब्जेक्ट वाइड मास्टरी दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑल्सो कि कितने कितने क्या क्या हैं, जिसकी जो वीकनेसेस हैं, इफ़ सम किसी की कॉर्पोरेट अच्छी नहीं है तो वो कॉर्पोरेट पे ज़्यादा ध्यान दें, ज़्यादा बार पढ़े। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ दैट वर्क ऑन योर वीकनेसेस, जो भी वीक सब्जेक्ट है, टाइपिंग वीक है, आपका इंग्लिश वीक है, उस पर ज़्यादा मेहनत करो। टाइम है, बट टाइम आपको एक एक यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, यूटिलाइज दैट ईच एंड एवरी टाइम दैट यू हैव, सबके पास यही सेम टाइम है। सो what you can do is just give best process, मतलब just believe in the process enjoy करो, enjoy as in काम करो अच्छे से, रिजल्ट का मत सोचो क्या हो रहा नहीं हो रहा है, कंपटीशन का मत सोचो कैसा है क्या नहीं है, अपना बेस्ट देते रहो, बस कल से बेहतर करते रहो, ठीक है। मेक अ डेली टारगेट अचीव करने की कोशिश करो, डोंट मेक अनरियलिस्टिक टारगेट कि मैं ये 2 एक्ट खत्म कर दूंगा, नहीं, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ अ स्टूपिड थिंग। वॉट इज़ रिक्वायर्ड कि आप जो भी टारगेट हो अचीव करो, अचीव जब करते हो ना यू गेट द सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, और सेटिस्फैक्शन जब होता है आपको तो यू टेंड टू डू मोर, फिर आप और करते हो, मतलब और एज इन और पढ़ने का आपको पुश करने का मन होता करता है, बट आप जब कंप्लीट नहीं करते वो पाइल अप होता है, फिर अगले दिन का शेड्यूल बिगड़ता है, एंड दैट जस्ट फ्रस्ट्रेट एवरीथिंग, सो डोंट डू दैट। नाउ क्रिमिनल लॉ में एक्सप्लेन स्ट्रैटेजी क्या 30 मार्क्स का है, तो जैसे तुम्हें रीड 1 चैप्टर, कोई चैप्टर आपने पढ़ लिया, डिफेमेशन, या जैसे मैंने बताया था चैप्टर्स बताए थे उसके क्या, प्ली बार्गेनिंग, समरी ट्रायल, कोई भी चैप्टर आपने पढ़ा क्रिमिनल लॉ का मॉर्निंग में ही उठ के पढ़ो, क्योंकि आप फ्रेश माइंड होता है, आपका दिमाग कोई ऑक्यूपाइड नहीं होता है, सो यूज़ दैट एनर्जी कि आप नई नई चीज़ें पढ़ने के लिए मॉर्निंग का टाइम यूज़ करो, उठने की हैबिट नहीं है उठने की हैबिट डालो, ठीक है, एंड जो भी है आउटपुट निकालो, टाइम सबके पास 24 घंटे ही है, इसको कितना आप स्क्वीज़ कर सकते हो टाइम अपने लिए, वर्किंग है तो बाकी जो वर्किंग है उनको तो अपने 10 घंटे देने ही देने पड़ेंगे, 10 से 12 घंटे, उसके अलावा आपको जो भी टाइम मिलता है सारा टाइम अपनी पढ़ाई पर लगाओ, काम पर लगाओ, देखिए एनीवेज। सो तो रीड 1 चैप्टर एंड टाइप ए स्ट्रक्चर्ड समरी उसका लिखो, समरी से आपका टाइपिंग प्रैक्टिस, रिवीजन, एंड फिर क्या होगा कि आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी धीरे धीरे होने लगेगी, राइट। अभी क्या होगा, ये आपको कॉन्सेप्चुअली आप रिकॉल कर सकते हो। कॉर्पोरेट लॉ में वही सेम चीज़ है, जैसे कॉर्पोरेट लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ वीक है, कॉर्पोरेट लॉ करें ठीक से हो, अभी से स्टार्ट करें, ठीक है। सो नाउ सिक्योरिटी लॉ में भी देखो बहुत इजी है, थोड़ा लगता है बड़ा ये, बट इट इज़ वेरी सिंपल एंड रेपिटेटिव लैंग्वेज, सो स्टार्ट करके कंप्लीट कर लो, इसको भी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, मतलब सेबी एक्ट, सेक्रा, डिपॉजिटरी तुम 1 से 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, कोई नया भी है वो भी हार्डली 2 दिन या 3 दिन लेगा। सो दिस ये तुम्हारा बेसिकली 70 मार्क्स का है, और इसी फ्लो में चलना है। सो द स्ट्रैटेजी एज इन कि करना क्या है, यू हैव टू रीड इट एज आई एक्सप्लेन्ड अबव, रीड एनी प्रोविजन चैप्टर, जो भी चीज़ें रीड करो, पढ़ो सुबह, दोपहर शाम में, मतलब कोई वर्किंग है तो अपने वर्क आवर में ही उसको टाइप कर ले, ठीक है, टाइप एज इन वो क्वेश्चन को टाइप कर ले कि ये चैप्टर मैंने पढ़ा हुआ है, इस चैप्टर में ये बोल रहा है, ये सेक्शंस हैं, ये चीज़ें हैं, तो आपकी रिवीजन हो गई। तो रीड एंड टाइप तुम्हें करना है, तो मॉर्निंग में यू रीड द बेयर एक्ट, फोकस एंड अंडरस्टैंड, इवनिंग में व्हाट यू कैन डू इज समराइज ऑन योर ओन वर्ड,
नाउ इससे क्या होगा, वीक वीक में भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो तुमने टाइप किया और चीज़ें की हैं उसी को रिवाइज कर लो, और आपके नोट्स भी बनते जाएंगे साथ में, साथ ही साथ। नाउ थ्री फोल्ड बेनिफिट ऑफ टाइपिंग प्रैक्टिस। अब इसका फ़ायदा क्या है? सो दिस इज़ अ टेस्टेड थिंग। इवन माई डिस्क्रिप्टिव पार्ट, answer writing was not good as such, and even the typing was not good. So the combination of these two helped a lot, and this will help you a lot. So typing, so to basically हाँ, अब this typing enhances your रिटेंशन तुम्हें करता है, बिकॉज यू थोड़ा ज़्यादा आप दिमाग पर जोर डालते हो फिर लिखते हो, सो इट हेल्प्स यू, और ये तुम्हारी क्या अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करती है, और जो रिवीजन है, रिकॉल है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देती है। Typing speed will increase. If the typing speed will increase, you will have much more time in the exam than others. So और तुम उसमें अपना थोड़ा और स्ट्रक्चर कर सकते हो, गलतियों को अमेंड कर सकते हो। So type daily so that you build the speed and as well as accuracy. Accuracy भी important है, आप गलती नहीं कर सकते हो, कुछ भी आप गलत टाइप करते जा रहे हो, सेंटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, या वोकेबलरी सही नहीं हो रही, स्पेलिंग सही नहीं हो रही है, तो आजकल तो वो ऑटो करेक्ट आ गया है, तो उससे भी स्पेलिंग की बहुत दिक्कत होती है। तो उसको भी क्या करो, अपने सेल फ़ोन के और ऑटो करेक्ट को ऑफ़ कर दो, सो दैट मतलब ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने लाइफ में आप इनकलकेट करते हो, सो दैट तुम्हारे गोल की तरफ तुम्हें हेल्प, मतलब डू ऑल दोज थिंग्स, वो करो जो तुम्हारे गोल की तरफ तुम्हें हेल्प करे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें करो, अपने डिस्ट्रैक्शन को भी हटा दो लाइफ से। इतनी सारी डिस्ट्रैक्शन है, अभी 4 महीने तुम्हारे पास है, 4 महीने जी जान लगा दो। ये मतलब हर बार मौका नहीं आता है, राइट? कुछ लोग डिसअपॉइंट होके जुडिशरी से यहाँ पर होंगे, एंड कुछ लोग इसके लिए एक्सटेंसिव प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, कुछ लोग नए भी होंगे। फॉर ऑल दोज, ट्रस्ट मी, सब लोग कर सकते हो, बस अपना बेस्ट देते जाओ। आउटकम आउटकम पर मत जाओ कि होगा कि नहीं होगा, क्या करे नहीं करे। अरे एक बार तो शिद्दत से चाहो, एक बार तो 100% दो, 100% करो, क्यों नहीं होगा। Okay, so it is a computer based, so obviously ये हाई there will be time pressure. So जितनी टाइम डेवलप करोगे, आपकी ऑब्वियसली एग्ज़ाम के टाइम पे एफिशिएंसी कम होगी, क्योंकि प्रेशर में होगा, तो जो आप यहाँ पर 17 मिनट में कर रहे हो, वहाँ 20 मिनट लोगे आप, आपकी एफिशिएंसी 10 से 20% कम हो जाएंगी। तो एटलीस्ट आपको जो डिज़ायर, मतलब जो एक्चुअल में टाइम है, उससे 10 से 20 मिनट, 20 मिनट आए ना, 10 से 20% कम में आपको करना होगा। Like what I used to do for the English descriptive, I used to set time for 55 मिनट, कि मैं 55 मिनट में ही अपना आंसर कंप्लीट करूँ, सो दैट मेरे को दिक्कत ना हो एग्ज़ाम में। सो रेडी रिविजन मटेरियल, सो वॉट एवर यू राइट ऑब्वियसली तुम उसको बाद में, तुमने गलत सही लिखा होगा, गलत किया होगा तो तुम सही करोगे, उसको सही करोगे तो वो तुम्हारे क्या हो गए, एक स्ट्रक्चर नोट बन गए, वो तुम्हारे लैंग्वेज में लिखे हैं, तुम्हारे वर्डिंग है, तो उनको रिवाइज करना, चीज़ें करना, उसको रिटेन करना, वो दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन रिवाइजिंग। तो तुम्हारे लिए एग्ज़ाम रेडी नोट हो गया। नाउ डेडिकेट 30 मिनट एवरी इवनिंग इन टाइपिंग, करेक्ट। नाउ दिस इज 12 week study calendar and weekly macro plan. Although the planning depends upon this at what stage you are, so it is very subjective. uh, सो इट इज़ डिफरेंट फॉर एवरी वन। सो मैं एक ब्रीफ, ये थोड़ा ब्रीफ मतलब एक ब्लू प्रिंट टाइप का है। सो फॉर द वन, मतलब फॉर द फर्स्ट 4 week, what you can do is first complete all the acts, एंड टाइपिंग भी साथ साथ करो, एंड द वीक 5 से लेकर फिर वीक 8 तक सेकेंड रीडिंग, मतलब सेकेंड टाइम करो। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, ऊपर भी तुम्हें बोला है कि एक बार कंप्लीट करना है, बट सबसे बढ़िया ये हुआ एटलीस्ट आप 2 से 3 बार कर लो। तो सेकेंड रीडिंग कर लो। अब इसमें टाइपिंग ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, यहाँ टाइपिंग कम करना पड़ेगा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आपका कहाँ जाएगा, रीडिंग द प्रोविजंस। आप अपनी सिलेबस कंप्लीट करोगे तो उसमें बहुत टाइम जाएगा, तो इसमें कम आपको टाइपिंग का चांस मिलेगा। इन द फर्स्ट 4 week आपको टाइपिंग का चांस कम मिलेगा, इसमें टाइपिंग का चांस कम मिलेगा। वेयर एज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ तुम सेकंड रीडिंग करोगे तो तुम जल्दी जल्दी प्रोविजन खत्म करोगे, यहाँ पर तुम्हें टाइम ज़्यादा मिलेगा,
So what you can do is type, मतलब you can invest a lot of time in typing, और इंग्लिश प्रैक्टिस भी साथ ही साथ तुम कर सकते हो। वेराज यहाँ भी आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर सकते हो वीक में एक बार। फिर यहाँ पर आप ट्वाइस और थ्राइस वीक में इंग्लिश का कर सकते हो। वीक एरिया स्ट्रेंथन, जो भी आपका फर्स्ट डिवीजन बाद आपको लग रहा है कि हाँ अभी भी मेरे इसमें दिक्कत है, मेरे कॉर्पोरेट में दिक्कत है, तो कॉर्पोरेट में थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, कंप्लीट करो। देखो हमें अपने वीकनेसेस और सारी चीज़ें बिफोर फेज़ 1 में टैकल कर लेनी है, ताकि फेज़ 2 में हमें ज़्यादा पैनिक ना होना पड़े। तो ये अभी हमारा गोल्डन टाइम चल रहा है, जहाँ पर when the notification will come, the time will come, the date of the exam will come, the bomb will start ticking, तो फिर आपको डर लगने लगेगा, चीज़ें होंगी, क्योंकि अभी पता नहीं है। तो ये बहुत गोल्डन टाइम है, इसको यूटिलाइज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो करो यूटिलाइज़, अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आती इस तरीके की, आएगी बट वो फिर आपकी लाइफ के 1.5 साल और जाएंगे। सो एटलीस्ट ये 4 महीने दे लो, आपकी लाइफ बदल जाएगी, थिंग्स विल चेंज। नाउ अब आगे फेज़ 1 का एग्ज़ाम विंडो आ जाएगा। यहाँ पर फेज़ 1 का एग्ज़ाम विंडो, तो इसमें भी एक चीज़ है, क्या है कि अभी क्या है कि तुम्हारा जो प्रिपरेशन चलेगा दैट इज़ 60 to 70% ऑफ फेज़ 2, 30% ऑफ फेज़ 1, ये ऐसे चलेगा। बट दिस इज़ ऑल्सो सब्जेक्टिव। वाई इट इज़ सब्जेक्टिव? क्योंकि किसी का स्ट्रेंथ कहीं होगा, किसी को पता है कि उसका फेज़ 1 निकल जाएगा, तो उसको मैं बोलूँगा वो आखिरी के 15 दिन में फिर करे फेज़ 1 की प्रिपरेशन। ठीक है, अभी करना है जैसे करंट अफेयर करे, बट किसी को लगता नहीं फेज़ 1 दिक्कत है, उसको चीज़ें मेहनत करनी है, तो वो मेहनत जिस पर करनी है वो काम करे। जैसे क्वांट रीजनिंग में मेहनत करनी है, करंट अफेयर भी करनी है, तो 30% दे अपने, जितने मतलब स्टडी आ रहा है उसका 30% उसमें दे, 60%, मतलब 60-70% डिपेंडिंग कैसा है आपका, वो दैट यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू स्ट्रक्चर। वी आर ग्रोन इनफ टू अंडरस्टैंड कहाँ कैसे करना है, नहीं करना है। पर नहीं होता है तो वी आर हियर टू गाइड यू, टू मेंटर यू। ठीक है, यू कुड अप्रोच अप्रोप्रिएट पीपल ऑल्सो, कि मतलब किस तरीके से कैसे क्या करना है। नाउ द आफ्टर फेज़ 1 एग्ज़ाम व्हाट इज़ रिक्वायर्ड दैट यू रिवाइज। फिर यहाँ पर जाके केस लॉज आएंगे। अभी केस लॉज का मत परेशान होना कि केस लॉज अभी कर लें, ये नहीं कर लें, वो कर लें। डोंट वरी, आई लेट यू नो किस तरीके से क्या करना है, नहीं करना। केस लॉज को बाद में करना, अभी सब चीज़ से बर्डन कर लोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। स्ट्रक्चर तरीके से जाओ, इनकम्प्लीट करने की कोशिश करो, टारगेट्स बनाए, कंप्लीट करो उसको। ठीक है, फिर मॉक टेस्ट तब जाके स्टार्ट होगा। मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं है अभी, कोई कोचिंग ज़रूरत नहीं है। कोचिंग ट्रस्ट मी विल नॉट हेल्प यू, तुम खुद से कर लोगे ये चीज़। ठीक है, नाउ दिस इज़ डन, दिस इज़ ऑल्सो एज सच नॉट रिक्वायर्ड। ये तो बस कोई मतलब नहीं है, ये भी तुम्हें खुद से देखना पड़ेगा। जो फुल टाइम पढ़ रहा है, फुल टाइम मतलब प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए अलग है। वो अपने 10-10, 12, 16-16 घंटे पढ़ें, जितना पढ़ सकता है पढ़ें, क्योंकि यही तुम पढ़ने के लिए तुम बैठे हो। तो यूज़ ईच एंड एवरी टाइम, फिर उसके बाद इंजॉय करना जो करना होगा ना। अभी वाई टू सी, एक मैं चीज़ बोलना चाहता हूँ, इफ़ यू वांट टू अचीव बिगर हैप्पीनेस इन लाइफ, सो लीव द स्मॉलर हैप्पीनेस एज इन स्मॉलर थिंग्स इन लाइफ, एज इन कि इफ़ यू रियली वांट टू अचीव एंड गेट सेलेक्टेड, सो फॉर द स्मॉलर हैप्पीनेस एज इन कि बाहर चल के घूम लें, 1-2 दिन के लिए कहीं चल जाएँ, मोबाइल चला लें, दीज आर द थिंग्स विच आर very brief period of happiness that doesn't give you satisfaction as such. So अगर तुम इसको sacrifice कर लेते हो, मतलब ये करना ही पड़ेगा if you want to achieve the bigger things in life, so make the mindset like this. And हाँ, one more thing, रिवीजन कभी स्किप मत करना। अगर तुम आज कुछ पढ़ रहे हो तो कल सुबह उठ के 1 घंटा रिवीजन के लिए डेडिकेट करना ही करना है। तो रिवीजन तुम्हें करना ही करना है, कितनी बार, जितनी बार कर सको ना, जब तुम्हें टाइम मिलता है तब रिवीजन कर लो। फ्लैश कार्ड बना के रिवीजन कर लो, कहीं चलते चलते रिवाइज कर लो। मतलब जस्ट ट्राई कि तुम कैसे कितना आउटपुट निकाल सकते हो अपने गिवन द लिमिटेड टाइम दैट यू हैव। नाउ सक्सेस मंत्रा है फाइनल कॉल टू एक्शन। सो क्रिटिकल डू एंड डोंट्स, ये थोड़ा ध्यान दो इस चीज़ का। हमें सिर्फ और सिर्फ बेराक पढ़ना है, बेराक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। कोई बुक वुक नहीं चाहिए, कोई नोट्स नहीं चाहिए, कोई समरी नोट नहीं चाहिए। इट्स ऑल स्टुबिडिटी, दिस इज नॉट गोना हेल्प यू। जस्ट द बेराक को जो करना है करो।
इट इज़ सफिशिएंट। ठीक है, मोस्ट ऑर्गेनिक सोर्स एक्यूरेशन, हाँ डिक्लेरेशन, क्योंकि यहाँ पढ़ोगे आपकी लीगल लैंग्वेज, आपकी वो वर्डिंग भी सही रहेगी, आप अच्छा लिख भी पाओगे, फिर क्वेश्चंस अगर डायरेक्टली पिक होते हैं वो भी हो जाएंगे आपके। डोंट डिले द फेज़ 2 प्रिपरेशन, फेज़ 2 अभी अभी पढ़ना स्टार्ट कर दो, एक दिन भी वेस्ट मत करो प्लीज़, करना स्टार्ट कर दो इफ़ यू रियली वांट टू गेट सेलेक्टेड। व्हाट टू डू नाउ, टू डू इज़ डेली टाइपिंग। अब ये भी डिपेंड करता है, कुछ लोग को टाइपिंग अच्छी है तो अपना टाइम कहीं और दो, अपने वीक एरियाज़ पर दो, करेक्ट। जिसकी टाइपिंग अच्छी नहीं टाइपिंग करें, तो टाइपिंग के साथ भी आधा नहीं, टाइपिंग में बोल रहा हूँ टाइपिंग कुछ भी करो, पर टाइपिंग जो आप पढ़ रहे हो तो उससे क्या होगा, रिविजन भी हो रहा है, टाइपिंग भी हो रहा है। वेरएज जिसका टाइपिंग अच्छा है तो वो भी टाइपिंग तो करना ही पड़ेगा, ऑल दो उसको भी प्रैक्टिस करना है उसको डिस्क्रिप्टिव के लिए, बट फॉर देम इट इज़ लाइक तुम ज़्यादा टाइम अपना दे सकते हो और रिवाइज करने में, 2 बार और रिवाइज कर लो, या अपने जो वीक सब्जेक्ट्स हैं उस पर मेहनत कर लो। डोंट चेंज मल्टीपल सोर्सेज मत जाओ, एक ही जगह से पढ़ो। माइंडसेट क्या होगा, एवरीवन हैज़ अ वीक एरिया, ऑब्वियसली सबका वीक एरिया होता है, मेरा था, मेरा क्या वीक एरिया था, माय वीक एरिया वाज दिस टाइपिंग एंड आंसर राइटिंग, बट आई वर्क डन ऑन इट, मैंने बहुत मेहनत की। ठीक है, यही टाइपिंग वाला आंसर टाइपिंग जो मैं सुबह पढ़ा, शाम में लिखा, दोपहर में लिखा, जब आई वाज वर्किंग ड्यूरिंग दैट ऑल्सो आई टू मेक श्योर कि मैं आधा घंटा निकाल के उसमें अपने सिस्टम पर ऑफिस में काम कर लूँ, तो हो जाएगा। एंड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट जो रहा वो डेफिनेटली जीतेगा। ठीक है, कंसिस्टेंसी बीट एवरीथिंग, तो तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। डोंट कंपेयर योर पेस विद अदर, either you're in life or with the peace, do not compare yourself. There is a quote कि comparison is the thief of joy, obviously it is true, अगर कंपेयर करोगे तो आप नहीं, मतलब आप परेशान रहोगे सिर्फ, तो कंपेयर मत करो, सिर्फ अपना बेस्ट दो, कल से बेटर करो, यू विल डू गुड इन लाइफ, यू विल डू गुड इन लाइफ। और यही मंत्रा दैट आई हैव फॉलोड एंड एवरी वन हु डज बेटर somewhere follows this, consciously unconsciously they do this, so do so, focus on the syllabus and complete it, every hour you invest save your panic later। obviously तुम अभी करोगे तुम्हें पैनिक बाद में होगा नहीं, और पैनिक नहीं होगा तो तुम बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी करोगे एंड यू विल डू बेटर इन द एग्ज़ाम। आई होप आई एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग एंड मेड सेंस, आई थिंक आपके डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे। हमने सिलेबस डिस्कस कर लिया, इंग्लिश के बारे में डिस्कस कर लिया, लीगल डिस्कस कर लिया कि लीगल डिस्क्रिप्टिव, लीगल एमसीक्यूज़ जो सब्जेक्ट्स हैं किस तरीके से करने, कंपनीज के मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं। सेबी एक्ट, सिक्योरिटीज़ लॉज लग रहे हैं बड़े, दे आर नॉट बिग, उसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट बता नहीं सकता हूँ, क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, आप पढ़ोगे इट विल बी ईजी। तो डो नॉट सी द एंटायर सिलेबस एज अ होल, आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करो, हो जाएगा। ओके, so all the best everyone, and start preparing, give your best each and every day, just give your best. We are here to mentor you and to help you in this process. This is very much important, you cannot waste your time in useless thing. And yes, all the best, take care, bye bye, work hard.